अंकल हाँ ये अंकल हो गया। हो गया। अच्छा मैं
Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Welcome, sir. Much, ma'am. Thank you so much. We can't hear, we can't see you. Oh, okay. I think you haven't turned on your cameras. Yes, now we can see you. Thank you so much, ma'am. Okay, we are just, sir, waiting for a few more to join. Sharp at 11, we will start with this session. Not a problem. Not at all. Let the people join even after 5 minutes. The 11:05 we can start. Let all the Okay. people join because sometimes you are speaking in continuity. तो जड़े लोग
Speaker on. A very good morning and a wonderful day to all the participants. On behalf of principal, staff and students of Shri Guru Gobind Singh College, I extend a very warm and hearty welcome to our eminent speaker of the day, Sardar Balbir Singh Ji. He will be conducting a mentoring session on lean startup and minimum viable product. This session is being organized by the innovation cell of our college, which has been set up as per the guidelines of Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India, with an objective to foster a culture of innovation and promote out-of-box thinking amongst faculty and students, and to give a boost to the government's Make in India program and to implement national innovation and startup policy. The cell strives to promote creative energy of our students by organizing several webinars, panel discussions, expert sessions, competitions, training programs, and workshops so that they work on new ideas and develop their entrepreneurial and innovative abilities. Today's mentoring session is also an endeavor in this direction. So before I invite our honorable resource person to conduct this session, I would like to introduce him to the participants. Sardar Balbir Singh Ji is highly qualified with a vast experience of more than 30 years and has been trained by EDII and ICED Ahmedabad. He worked with NITCON, a consulting and training organization, and served NITCON as vice president for the last 7 years. He has to his credit several research papers published in reputed journals and magazines. Since March 1985, he is in the profession of skill development, personality development, and entrepreneurship, and has established 11 skill development centers in Gurdaspur district of Punjab. So it is obvious that Sir has trained a large number of people in skill and entrepreneurship development. He is also on the panel of various engineering colleges and universities and regularly conducts faculty development programs for the faculty of different universities and engineering colleges. He has been honored with Excellent Work Award by Economic Growth and Research Association of Punjab for promoting entrepreneurship in the state of Punjab. He has also been honored for his excellent services by Jalandhar Management Association. So now I would request our worthy resource person to start with today's session. Sir, over to you. Good morning to everybody. Am I audible? Sir, you are audible. Thank you so much. Thank you so much. Good morning to participants. First of all, I am thankful to principal, management, organizers, especially to Madam Taranjeet Kaur Rao, who contacted me 3 days back for taking the session. And I was surprised to get a call from her because her number was not stored with me. And unidentified numbers I usually sometimes avoid. Then she gave a WhatsApp message. I'm Dr. Rao. So I was so surprised because last time I took session in close association with Dr. Rao in say 2009 or 8. So it was around 12, 13 years back. Although I was associated with this college because your pharmaceutical department was conducting some entrepreneurship awareness camps through Regional Center for Entrepreneurship Development, RCED. So I was and I am working as a honorary advisor with this institution. So they sent me for taking few sessions and interaction with the pharma students. It was excellent experience in your college. So once again, I am thankful that I have been shown good confidence and faith in me to take this type of session.
I will be just presenting my academic and technical experiences. Some academic, some practical. You have to see and try to learn from those experiences, because in innovation, entrepreneurship, skill development, things are very vague. So you cannot say 2 is to 2, 4. No. In entrepreneurship, sometimes 2 is to 2, it comes 5, and sometimes 2 is to 2 comes 0 also. So it depends upon the concerned person. It depends upon the environment which you have to create and work. So today's main title of the topic is Viable Product Business. Innovation Center is doing, but lean startup is very tough. So sometimes we have to understand the definition of startup. And the second part of the title is Viable Product Business. Yes, viability is very, very important, because it's easy to sometimes it's easy to start a unit, small venture, but sometimes it becomes slow difficult to run it and to survive. And if you go to the Government of India's data, you will be surprised to know that there are more than 33% of small units which once upon a time they were started, they were opened, but after 2 years, 3 years, they were unable to survive and they were closed. So unfortunately, they were closed. मैं मतलब आपको discourage नहीं कर रहा शुरू में ही, लेकिन थोड़ा हकीकत पे भी बात करेंगे. Are you comfortable in Hindi or Punjabi, or I have to keep on speaking English? Sir, you can use mixed language. हाँ, mix कर लें. तो देखो, सबसे पहले जब हम बिजनेस की, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फिजिबिलिटी की बात करेंगे और फिर वायबिलिटी बात करेंगे. और आज का टॉपिक फिजिबिलिटी और वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे है, तो मैं ज्यादा उसके आसपास ही रहूंगा, लेकिन इधर उधर भी कुछ उसको टच करने की कोशिश करूंगा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिबिलिटी. फिजिबल है कि नहीं है, मीन्स जो मैं आइडिया मेरे दिमाग में है, जो मैं कोई वेंचर लगाना चाहता हूँ, जिस लाइन पे मैं काम करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल है कि नहीं है. बिकॉज देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो ओवरऑल पॉसिबल ही नहीं होते, लेकिन थ्योरेटिकली, आइडियलिस्टिकली हमें बड़े अच्छे लगते हैं. खासकर जब हम इनोवेशन में काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इनोवेट करते हैं जो हमें लगता है कि जी ये टाइमर के साथ वॉशरूम है, ये आप उस पर टाइम करोगे तो ये खुल जाएगा, ये सेंसर के साथ है, जब आप बाहर जाएंगे तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा. ओके, these things are coming, but sometimes for a small entrepreneur they are not commercially viable. वो viable नहीं रहते क्योंकि उनकी फिजिबिलिटी जो है वो कॉमन नहीं है, और एक आम कॉमन आदमी उसको चला नहीं पाता. So today we will be discussing about the common people. Yes, unique things are there, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ काफी कुछ हो जाता है, और गवर्नमेंट में लॉसेस की बात नहीं होती, तो वो कुछ ऐसे यूनिट भी चला जाते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, इनोवेटिव है. लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल अपनी बात करनी है तो सबसे पहले मैंने फिजिबिलिटी देखनी है. फिजिबिलिटी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये यूनिट जो मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबल भी है कि नहीं, पहले ये देखेंगे, फिर इसकी वायबिलिटी आएगी. वायबल और फिजिबिलिटी में क्या डिफरेंस होगा, व्हाट इज द डिफरेंस. मतलब मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू गेट यू अंडरस्टैंड कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज अगर वो थिंकिंग प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा तो वो फिर आपके एक्शन में और आपकी वर्किंग में भी क्लियर हो जाएगा. मेनी टाइम्स वी हैव द कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट्स इन आवर माइंड, एंड entrepreneurship and becoming entrepreneur and setting up the units are very, very sensitive and very expensive, especially for the students who have just come out and they want to start, or they are student and simultaneously they want to start. तो वो इतना चांस फैक्टर नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इतने रिजर्व्स नहीं होते. दे आर स्टूडेंट, दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आर वेरी टफ कि वो उनकी फीस दें और उनके और खर्चे दें, कि वो उनके प्रोजेक्ट पे भी पैसा दें.
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिजिबिलिटी तो हमने ओवरऑल पॉसिबिलिटी देखनी है। पॉसिबिलिटी क्या कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि मैं मोहाली में जहाजों का यूनिट लगाऊंगा, आई विल सेट अप यूनिट ऑफ एरोप्लेन्स, तो ये पहली नजर में लग रहा है कि इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इतनी जगह ही नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट मेरे को लाइसेंस ही नहीं देगी, इसका रॉ मटेरियल ही नहीं अरेंजमेंट होगा, फिर मैं इसकी मार्केट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं जहाज बेचूंगा कहाँ पे। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि देयर आर मेनी स्मॉल प्रोजेक्ट्स आल्सो जो पहली लुक में ही नजर आते हैं कि दे आर नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबिलिटी पहले देख के आगे चलेंगे, हवा में बात नहीं होगी, आइडियलिस्टिक अप्रोच से काम नहीं करेंगे। फिर करेंगे वायबिलिटी की बात। वायबिलिटी में पर्टिकुलरली मैं खुद इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट लग तो सकता है, लेकिन क्या मैं इसको लगा पाऊंगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What I am telling you is out of my 36 years experience dealing with the new entrepreneurs, startups and mature entrepreneurs, industries. मैं यही 35-36 साल काम करता रहा. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बड़ी बारी हम ये नहीं देखते कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट, बट इसको मैं चला पाऊंगा? या एक कदम पहले आ जाते हैं, मैं इसको लगा पाऊंगा? कैन आई स्टार्ट? एंड ओनली स्टार्ट इज नॉट ए क्राइटेरिया. आप उसको सिर्फ स्टार्ट तक मत रखें, वो सरवाइव भी करना चाहिए. वायबिलिटी में सरवाइव वर्ड और टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि आपने आज नहीं देखना, आपने देखना है कि 2031 में इस प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा, 2031 में इसकी क्या पोजीशन होगी, 2031 में. I mean, you have to go 10 years ahead in your making your estimates, making your judgments, making your predictions. That is more important because project is not for 2, 3, 4, 5 years. It is for the long term. Your next generation will come. Then the next generation will come. If you see Tata Productions, so Jamshed Tata 1928 में उनका डेथ हो गया. 1928 में जमशेद टाटा की डेथ हो गई थी, लेकिन अभी टाटा की 5th-6th जनरेशन आ रही है. टाटा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुंचता पहुंचता गाड़ियों से होता हुआ कहाँ से टाटा टी आ गई, टाटा लिपस्टिक भी आती है और टाटा की चाय भी आती है. सो व्हाट आई वांट टू से कि वंस टाटा वाज ऑन बोर्ड, टाटा हैड नो आइडिया. टाटा वाज आल्सो अटेंडिंग द सेमिनार्स एंड टॉक्स की यार कैसे करें. सो ऐसा मत सोचो कि मैंने टाटा की बात की तो जी वो तो बहुत बड़े की आपने बात कर दी, हमने तो बस ऐसे ही करना. नो नो नो, एवरी एंटरप्रेन्योर इज नॉट ए बोर्न एंटरप्रेन्योर. They are not born entrepreneurs. They are created entrepreneurs. And in a country like India, there are more than 37% of the total entrepreneurs who are created entrepreneurs. मतलब मुझे बहुत खुशी होती है ये डाटा देख के और अपने लोगों से मिलके कि अब क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर बहुत आ गए हैं और पुरानी मिथ खत्म हो रही है. पुरानी मिथ क्या थी कि ओनली एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली बोर्न एंटरप्रेन्योर्स, कि जिसके बाप दादे ने काम किया बिजनेस में, इंडस्ट्री में, वही करेगा, वही करेगा. और बड़े लोगों ने इसलिए स्लाई नहीं बनाई, सोचा ही नहीं, और उन्होंने उस लाइन में ही नहीं गए कि यार हमारे बाप दादा ने तो कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, कोई इनोवेशन वाली बात ही नहीं हुई, हम तो कर ही नहीं पाएंगे. नो नो नो, ये मिथ खत्म हो गया. अब 37% ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, 37 आर क्रिएटेड, जो क्रिएट अपने आप को उन्होंने खुद को एंटरप्रेन्योर बनाया. सो इस चीज का आप हौसला रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें कि क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग इन बल्क. और क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर्स कौन है? जिसका पिताजी पीएन था, जिसका पिताजी क्लर्क था, किसी का पिताजी छोटी मोटी किसी नौकरी पे था, वो एग्रीकल्चर में था, वो उसको ABC नहीं पता था. लीन ऑफ बिजनेस इसको बोलते हैं ना, जो आपने आज टाइटल दिया, कि उसका सिर पैर ही नहीं पता था. अगर आप लीन को एक्सप्लेन करेंगे तो लीन मीन सिर पैर, तो सिर पैर ही नहीं पता था. लेकिन दे आर वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री. सो माय फर्स्ट मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट इज that you have to be confident that one day you will be a created entrepreneur irrespective of your background. कि तुम्हारा बाप दादा चाचा ताया फैमिली में कोई बिजनेस किसी ने किया नहीं किया, एंटरप्रेन्योरशिप में आया कि नहीं आया. सो अभी तक हमने 2 बातें कवर की, मैं उसको सम अप कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने फिजिबिलिटी देखनी है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये कोई आइडियलिस्टिक आइडिया ना हो, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर वेरी गुड इन लेबोरेटरीज, very good at innovation center, very good in research center,
very good in thesis, but they are not feasible whereas commercialization is concerned. उसको commercial करना है, क्योंकि हमें एक अपनी सोच को क्लियर रखना है कि हम हॉबी के लिए नहीं कर रहे. Innovation is not our hobby, or coming in business or coming in entrepreneurship is not our hobby. We want to generate funds to stand up on our own feet. हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, और सोसाइटी में there are different ways to earn the money, and one of the important way to earn the money is to go in entrepreneurship. Entrepreneurship में हम आए. So commercialization is very very important कि हमने उसको commercial point of view से देखना. So feasibility, ये लग सकता कि नहीं लग सकता, and viability, क्या मैं इसको लगा पाऊंगा, मैं, फिर वो तुम्हारा कंसर्न हो गया. 10 ने लगाया, that was viable, 10 ने लगाया, लेकिन मेरे से नहीं लगेगा क्योंकि मेरी वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरी वो एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे पास वो कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, मेरे में वो स्किल नहीं है, मेरे में वो ट्रेड्स क्वालिटीज नहीं है, और सब में सब नहीं होते. अगर नहीं है तो उसमें कोई डिस्करेजमेंट या कोई वो ऐसी बात वाली नहीं है. मैं अगर 36 साल से एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूँ, एवरी लेवल, इवन district level or state level or national or even international level, I've been to more than 13 countries for these type of topics, but I myself is not an entrepreneur. मैं तो entrepreneur नहीं हूँ. मैं तो सैलरी में था, रिटायर हो गया, अब मैं 1-2 इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हूँ, कुछ के साथ पैनल पे हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप पे, लेकिन मैं खुद एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ. And one of the reason is that I may not have that competencies, qualities, that resources and traits that I couldn't become an entrepreneur. That means I was very good in entrepreneurial education, but I was not good in entrepreneurship. Entrepreneurship is when you develop yourself as an entrepreneur. So viability is very important कि ये नजर तो आ रहा है, इसकी फिजिबिलिटी बहुत है, उसने भी लगाया, इसने भी लगाया, वहां भी लगा, वो बहुत पैसे कमा रहा है, ये बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन क्या मैं उसको लगा पाऊंगा, मैं लगाने के बाद उसको सर्वाइव कर पाऊंगा, उसके साथ सर्वाइव कर पाऊंगा, दैट इज वायबिलिटी. सो हम फिजिबिलिटी से वायबिलिटी पे जरूर आएंगे. फिजिबिलिटी तक लोग क्लोज कर देते हैं कि नहीं उसने भी लगाया, बहुत बढ़िया चल रहा, उसने चलाया, बहुत बढ़िया चल रहा. और मैंने देखे जी ऐसे, तो मैंने कोई 8-10 यूनिट देखे, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो कमाल ही कर दिया उन्होंने. लेकिन वैसा कमाल मैं कर पाऊंगा क्योंकि आई इंडिविजुअल विल बी इन्वॉल्व. इसमें स्पून फीडिंग नहीं हो सकती कि आपको कोई स्पून फीडिंग करवाएगा या कोई हाथ पकड़ के आपको गाइड कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है. एंटरप्रेन्योर जो है वो पीएम टू प्रोप्राइटर अपने आप ही करता है. हम उसको P2P कहते हैं कि उसको पीएम का काम भी करना पड़ता है, प्रोप्राइटर का करना पड़ता है. छोटे काम भी, जैसे आप छोटे से शुरू करेंगे तो छोटे काम में आप यू कैन नॉट हायर द पीपल कि मैंने एक मार्केटिंग का बंदा हायर कर लिया, मैंने एक प्रोडक्शन का बंदा हायर कर लिया, मैंने एक मेंटेनेंस का बंदा हायर कर लिया, मैंने एक मार्केटिंग का हायर. ऐसा नहीं हो सकता, ये लार्ज इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है. सो आई विल बी फ्रॉम P2P, फ्रॉम PM टू प्रोप्राइटर. सो आई हैव टू सी के I will be able to start or not, and if I think I will be able to start, I will be able to survive, I will be able to maintain, which I gave an example कि you have to predict for another 10 years कि अगले 10 साल में मेरी क्या क्या predictions हैं और मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा. That is viability and feasibility. Then we will come to the viability का first part क्या है कि that you have to see the cost estimates. Because देखो एक चीज को बिल्कुल ना भूलना. There is some concept coming in entrepreneurship, social entrepreneurship. I don't agree, and I wrote to so many authors कि यार ये आप नई चीज कौन सी अलग सी पेश करने वाले हो, social entrepreneurship की बातें होती हैं. So it is एक चीज आप सब नहीं भूलेंगे कि business means profit. Business means profit, and business and loss is no business. फिर वो कुछ और ही हो रहा है. नो डाउट जेस्टेशन पीरियड होता है. जेस्टेशन पीरियड मीन्स कि पहला साल दूसरा साल बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पॉइंट आता है. ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स जहां आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस बराबर आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है. लेकिन वो किसी को दूसरे साल में, किसी को तीसरे साल में प्रॉफिट शुरू होता है. जेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन द एम शुड बी वेरी क्लियर, द गोल शुड बी वेरी क्लियर दैट बिजनेस मीन्स प्रॉफिट एंड बिजनेस इन लॉस इज नो बिजनेस. सो मैं जो भी करने जा रहा हूँ वायबिलिटी देख रहा हूँ,
या फिजिबिलिटी देख रहा हूँ बिजनेस की, या उसका कुछ भी देख रहा हूँ, मेरे को हर चीज इन कंसर्न विद मनी करनी है कि यस मनी का क्या प्रोसेस होगा, एम आई एबल टू सर्वाइव, मैं अकेला सर्वाइव कर जाऊंगा इस पैसे से, फिर मैं अपनी फैमिली को आगे सर्वाइव कर जाऊंगा, फिर आगे मैं इसको डाइवर्सिफाई कर जाऊंगा, इसको एक्सपेंड कर लूंगा। बिकॉज 70% एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस इन ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, 70% एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, मैं तो 2 लाख से शुरू करना चाहता हूँ, मैं तो 1 लाख से शुरू करना चाहता हूँ। आई कैन कोट यू एग्जाम्पल्स वेयर पीपल स्टार्टेड विद 20,000, वेयर पीपल स्टार्टेड विद 10,000, नाउ दे आर एट द 1,500 crore टर्न। 1500 करोड़ के बंदे हैं जो मैं उनसे मिलता हूँ, और इसी पीरियड में उन्होंने 20,000 में शुरू किया, 25,000 में शुरू किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, everyone has to know that the 70% entrepreneurs in the world, especially in India, they started from small. So मुझे छोटे से शुरू करना है। छोटे से मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं होगी कि मैं इतना बड़ा यूनिट को चला पाऊँ, वो नहीं चल पाएगा। 1 सेकेंड, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, कि मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट्स में आना है। इमीडिएटली प्रॉफिट्स में आना मीन्स कि मैं 1 साल 2 साल तो सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन तीसरे साल में मैंने जेस्टेशन पीरियड खत्म करना है, एंड मनी शुड स्टार्ट कमिंग इन बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द मनी। सो वायबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि यू हैव टू गो फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टाइटल क्या बोल रहा है, कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट क्या है। आई एम नॉट विद द कॉमर्स बैकग्राउंड, मेरी कोई कॉमर्स की बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब चलते फिरते थोड़ा विद एक्सपीरियंस ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है। देयर आर पीपल फ्रॉम द कॉमर्स फैकल्टी, दे कैन मेक मी राइट, कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि इस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कितनी आएगी। ये एस्टिमेटेड होगी, आपने एस्टिमेट लगानी है, और एस्टिमेट में आपने 10, 15, 20% ज्यादा डालना है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज सम हिडन एक्सपेंसेस जो अपने जिंदगी में सोचे भी नहीं होते ना, वो खर्चे आ जाते हैं। अचानक कंप्यूटर खराब हो गया, अचानक ब्रेकअप किसी चीज का हो गया, अचानक ये टूट गया, अचानक ये खराब हो गया, जो तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे भी होगा। सो सबसे पहले तो हम उसको कॉस्ट को देखेंगे कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है। अब कॉस्ट में क्या आएगा, बिकॉज यू हैव टू सी द वायबिलिटी ऑफ वेरी स्मॉल थिंग। देखो दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं और धाड़ शुरू करने की कोशिश करते हैं कि यार बस हूँ साढ़े को हैगा 5 लाख 6 लाख हैगा, लेट्स स्टार्ट ए गुड यूनिट। ओहो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया है, आई एम वेरी इनोवेटिव, लेट्स स्टार्ट इट। दोनों इतनी जल्दी नहीं करनी। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यू हैव टू वर्क फॉर 6 to 8 months बिफोर इंस्टॉलेशन और बिफोर स्टार्ट। हकीकत में आपका काम शुरू हुए उससे पहले कम से कम 6, 8, 10 महीने आपको काम करना है, बिकॉज वायबिलिटी आपको छोटी छोटी चीज की देखनी है कि ये चीज ऐसे हो गई तो इसका इतना लॉस होगा, ये चीज ऐसे होगी तो इतना लॉस होगा। अब जगह कहाँ से आएगी, जगह मेरी किराए पे होगी कि मैं खरीदूंगा। अगर मैं किराए पे लूंगा, क्योंकि किराए पे ही लेगा छोटा एंटरप्रेन्योर, वो खरीदेगा नहीं, तो ही हैज टू सी द कॉस्ट ऑफ द रेंट कि पर मंथ पर ईयर मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ेगी। फिर मैं उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी करूंगा, बेशक एक ही मशीन लगाऊंगा, 50,000 वाली मशीन लगाऊंगा, 1 लाख वाली मशीन लगाऊंगा, बट आई हैव टू एस्टिमेट कि ये मशीन इतनी क्या है। फिर उसको अगर खराब हो गई तो उसकी मेंटेनेंस कितने की होगी, मतलब एस्टिमेट सा होगा कि अगर खराब होती है तो इसकी एस्टिमेशन होगी कि ये इतने में ठीक हो जाएगी, इतनी दूर से बंदा आएगा इसको ठीक करने आएगा। फिर मेरी मैन पावर कितनी होगी, मेरे पास 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, उनकी सैलरी कितनी होगी, बिजली का खर्चा कितना होगा, पानी का खर्चा कितना होगा, मेरा किराया कितना होगा, फिर मुझे उसको पैक करना है, पैक करने पे कितना खर्चा आएगा, फिर मेरे को उसकी प्रिंटिंग करनी है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक इंटेलिजेंट प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वायबिलिटी का पार्ट समझ के उसको देखने की कोशिश करता है। यू हैव टू सी every aspect of these things because they will cost you, and the cost will go high, the profits will come down. It's very simple formula. Cost बढ़ती जाएगी तो प्रॉफिट कम होते जाएंगे, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की एक थ्योरी ये भी बताती है। सो टोटल कॉस्ट हम देखेंगे कितनी बिका
उस पर ट्रांसपोर्टेशन कितनी थी, उस पर पैकिंग कितनी थी, उस पर जीएसटी कितना था, उस पर प्रिंटिंग कितनी थी, उसके हिडन एक्सपेंसेस कुछ लगेंगे, वो कितने थे, तो फिर माइनस करके मेरे हाथ में क्या आया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to see the viability. You have to start with the cost benefit analysis. जब तक आपको कॉस्ट और उसके प्रॉफिट क्लियर नहीं है, उसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि आप शौक के लिए नहीं कर रहे, आप हॉबी के लिए नहीं कर रहे, आपने इसके थ्रू अपना और अपने परिवार को पालना है. इट्स अ सोर्स ऑफ your employment, I should say, a source of income to survive in the life. And once you started, then there is no limit in this area. एक बारी जब प्लस माइनस बिजनेस के समझ आ जाते हैं, वो पहले 2-3 साल में समझ आ जाते हैं. उसके बाद तो फिर आदमी को ये होता है कि मैं ये भी शुरू करूँ, मैं ये भी शुरू करूँ, मैं इसको बंद करूँ, उसको शुरू करूँ. शुरू के 2-3 साल जो सर्वाइव कर गया वो निकल गया. और शुरू के 2-3 साल ही स्पेशली यंग जनरेशन, जो आप शायद इसी एज ग्रुप में होंगे, 18 से 26 साल का जो ग्रुप है, वेरियस एनालिसिस करता हूँ वेरियस एजेस के, कि उनके क्या इन्फ्लुएंसेस और इम्पैक्ट होते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में, वो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं. सो ये वाला ग्रुप पहले 2 साल में कहता भाड़ में जाए यार, मेरे से नहीं होता, चुपचाप कहीं 8,000 में लग जाओ, 10,000 में लग जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाओ. तो लाला भी बोलता है कि यार कोई नहीं, रेगुलर कर देंगे. माँ बाप भी कहते हैं कि कोई नहीं बाद में रेगुलर हो जाएगा, अब तू लगा रहा है. और उसके में कईयों के 15-15 साल निकल जाते हैं कि वो कभी 1,000 बढ़ा देता है, कभी 2,000 बढ़ा देता है. सो माई स्पेशल मैसेज टू द यंग जनरेशन, जो बच्चे इस समय मेरे साथ बात सुन रहे हैं, कि जेस्टेशन पीरियड इज वेरी हार्ड, यू हैव टू सर्वाइव. उसमें से आपको निकलना होगा दम लगा के, और दिमाग में इस चीज को डाल के कि ये बड़ा शॉर्ट टाइम है, ये निकल जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वंस द सिस्टम इज क्रिएटेड, फिर तो आपके जाने की जरूरत भी नहीं होगी, अपने आप ही सारा सिस्टम चलता जाएगा. और एंटरप्रेन्योरशिप में खासकर 70-30 की रेशो होती है, छोटे में भी और बड़े में. 70% काम एंटरप्रेन्योर करवाता है और 30% करता है. 30% करता है और धीरे धीरे तो फिर वो 20% पे आ जाता है, सिर्फ मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग करता. बाकी तो 80% सिस्टम बन जाता है. एवरीवन नोस कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना. बेशक उसमें 3 बंदे ही होंगे, अब इसमें 4 बंदे होंगे. मैं बड़े भारी यूनिट की या लार्ज इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अभी आपने छोटे से शुरू करना, हम छोटे की बात करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. आपने एस्टिमेट जरूर लगानी है पेंसिल और कॉपी पकड़ के, कि यार जगह का इतना खर्चा है, मशीन का इतना खर्चा है, ट्रांसपोर्ट इतनी है, मैन पावर इतनी है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी है, वाटर इतनी है, ओवरहेड चार्जेस इतनी है, मेरे पर डे इतने खर्चे तो डलने चाहिए, पैकिंग कितने में होगी, प्रिंटिंग कितने में होगी, ट्रांसपोर्टेशन कितने में होगी, और ये सारा खर्चा होगा. और फिर जब बिकेगा तो वो इतने का बिकेगा. फिर उसका मैं एस्टिमेट कि कम से कम 1 हफ्ते में कितने पीस बिकेंगे, कितने दर्जन बिकेंगे, 1 महीने में कितने बनेंगे. फिर उसको माइनस करके थोड़ी सी फिगर निकालने की कोशिश करेंगे कि यू आर टुवर्ड्स लॉसेस और यू आर टुवर्ड्स प्रॉफिट, यू आर ऑन हायर प्रॉफिट और यू आर लो प्रॉफिट. इवन इफ यू आर ऑन ए लो प्रॉफिट, दैट मीन्स कि अगर कुछ और रिटर्न चार्जेस भी भर के तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे. इवन इफ फॉर फर्स्ट 2 years you are at break even, you are through. बिकॉज बड़ी रोजी पिक्चर नहीं देखनी शुरू में, और बड़े क्या बोलते हैं उसको, बेड ऑफ रोजेस नहीं देखने की. जी मैं तो यूनिट लगाऊंगा, जब मेरा यूनिट चल पड़ेगा, मेरे पास एक पीएल होगा, एसी लगा होगा, मैं घंटी बजाऊंगा, चाय आ जाएगी, तो मैं उसको बोलूँगा ऐसे कर दे, ऐसे हो गया, लोग मेरे पास अपार्टमेंट से आएंगे. क्योंकि ये हम सारा देखते हैं ना स्क्रीन्स पे, इंडस्ट्रीज का देखते हैं, बिजनेसमैन का देखते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो वाली स्टेज कितने साल के बाद है. How he started and how he reached to this stage, वो बीच वाला गैप रह जाता है. हमें लगता है यार ये तो कमाल ही है, कमाल तो है, लेकिन अंबानी का बाप भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि नीरू भाई अंबानी पेट्रोल बेचता था और उसका टाई से झगड़ा हुआ था. वो ड्रेस कोड था टाई का, और वो एक दिन टाई लगाने भूल गया, तो उसी दिन गलती से मालिक आ गया. तो जिस दिन कुछ गड़बड़ हो उस दिन ज़्यादा मॉनिटरिंग हो जाती है, हमारी लाइफ में भी हो जाती है. तो उसको गाली गलौजी हो गया कि वेयर इज योर टाई, ये वो, तुम ड्रेस कोड में भी हो, जस्ट गो वियर द टाई. तो उसने उसको बहुत सीरियस लिया कि यार मैंने करना ही नहीं. वो गया ही नहीं वापस, कहता छोड़ो करे, मैंने नहीं करना. बिकॉज ये इमोशनल क्वेश्चन एक छोटे बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इमोशनल क्वेश्चन मीन्स हाउ यू आर इमोशनली इन्वॉल्व.
आप मतलब सरसरी सा काम नहीं कर सकते, दिखावे वाला काम नहीं कर सकते। यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ लाइक एनीथिंग। मतलब जितना आप अपने माताजी से प्यार करते हो, जितना अपने पिताजी से प्यार करते हो, अपनी बहन भाई से प्यार करते हो, और जिनका किसी की एक अदे के बीच में शादी हो गई होगी, पता नहीं अभी हुई है कि नहीं, जितना आप अपना बीवी से प्यार करते हो, उतना प्यार अपने बिजनेस से शुरू में करना पड़ता है। यू हैव टू टाइप फॉर दैट। इमोशनल क्वोशेंट EQ बोलते हैं उसको। ये छोटे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एनी अदर एम्प्लॉई। अगर आपने 9 बजे पहुंचना तो आप 8:45 पहुंच रहे हो, बिकॉज इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड। आपके पीछे कोई डंडा लेके नहीं घूमेगा, या आपके कोई चेकिंग नहीं हो रही है आपकी एक छोटे बिजनेस में। यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू डू, एंड यू आर इमोशनली इन्वॉल्वड बिकॉज यू हैव सेट अप सम गोल्स एंड यू हैव टू अचीव दैट। So I will say never set up the goal if you have no intention to achieve that. Or you must set up the goals if you love to achieve that, and you must do it. No business. It is not charity. It is institution, especially at your stage. बाद में 20 साल के बाद तुम भी बहुत चैरिटी करेगा, तुम भी बड़ा डोनेट करेगा, वो सब करेगा जब अच्छा आ जाएगा। अभी जब रोटी के लाने हैं तो इन बातों में पड़ेंगे। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें रिलायबल एस्टिमेट्स लगाने हैं। ये नहीं कि आप अंदाज जैसे चले यार इसका 20,000 लगा ले, चले यार इसका 10,000 लगा ले। नो 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 नो, आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी के बगैर आगे चलने की। इकोनॉमिकली ये वायबल है। इकोनॉमिकली वायबल मीन्स पैसे के चक्कर में मनी, कॉस्ट, बेनिफिट्स हैं। एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके सामने एक पेज पे होंगे, बड़े लंबे चौड़े ग्राफ रूप में बनाने, बट यू आर वेरी क्लियर कि मेरे तकरीबन ये खर्चे हैं जिसमें मैंने 20% और डाल दिए, और मेरे को तकरीबन इतना प्रॉफिट होने वाला है, उसमें से 10% मैंने और कम किया कि चलो 10% और खर्च हो जाएंगे तो मेरा को इतना बचेगा। अगर जब तक वो पिक्चर नहीं बनेगी हम हाथ नहीं डालेंगे। देन वी कम टू द लीगल वायबिलिटी। लीगल वायबिलिटी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज लोग पीपल आर नॉट अवेयर, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन इनपुट्स नहीं होती। इंफॉर्मेशन इनपुट्स से मेरा मतलब है कि दे डोंट टेक इंफॉर्मेशंस, you have to collect the information. In entrepreneurship, nobody comes to your home and tell you. Thanks to your this management and organizers, इन्होंने ये इनोवेटिव सेंटर बनाया, बड़ा अच्छा लगा। चलो कभी किसी दिन मास्क मुस्क डाल के मैं भी देखने आऊंगा ये सेंटर में एक्चुअल में क्या हो रहा है। बट इट्स ए प्लस, आई लव इट कि कॉलेजेस में ऐसा एक्टिविटी हो रहा है। एकेडमिक्स के अलावा कुछ और एक्टिविटी हो रहा है, कुछ लोगों को क्लियरली बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप में कोई किसी को बताता नहीं है, मैं ये ऐसे करना चाहता हूँ। और इसमें कोई नोट्स नहीं मिलते बाजार में, इसमें कोई बुक्स नहीं मिलती, इसमें कोई एकेडमिक्स नहीं होती कि एकेडमी मैंने 34 में ज्वाइन कर ली कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड हाउ टू डू ए बिजनेस। मुझे तो भी कोई एकेडमी मिली नहीं ऐसी, बिकॉज ये बिल्कुल साइकिल की तरह है। यू हैव टू फॉल डाउन, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉल डाउन, फिर उसको ऊपर खड़ा करेगा, फिर चलाएगा। लेकिन ये चलता रहेगा। साइकिल का बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम उसको चलाते रहते हैं। जैसे ही साइकिल रुकती है तो वो चारों तरफ हिलती है, फिर हमें नीचे पैर लगाना पड़ता है। तो साइकिल स्मूथ चलती रहे तो साइकिल को चलाना जरूरी है। सेम फार्मूला ये डेविड मैकक्लाइंड का एग्जांपल है जो मैंने बोल दिया, लेकिन डेविड मैकक्लाइंड एक साइकिल पे उसने बड़ा काम किया। ही कंपेयर्ड साइकिल विद द एंटरप्रेन्योरशिप के। साइकिल चलती रहनी चाहिए, जो रुकी तो वो साइकिल भी गिरेगी और वो नीचे आप गिरेंगे, नीचे आप आएंगे, ऊपर साइकिल गिरेगी। ये आपने सड़कों पे बहुत देखा होगा बच्चों, वो चलती रहेगी तो बहुत बैलेंस तरीके से चली रहेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में व्हेन यू स्टार्ट इट शुडंट रन इवन, भागे ना बेशक, लेकिन इट शुड वॉक, चलती रहे। वो चल तो रही है ना, स्टेप्स में आ रही है, तो उसमें गिरना संभावित है। मतलब अगर आप लॉसेस से घबराएंगे, अब मैंने अभी बात की कि लॉसेस नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये मिक्स नहीं हो रहा, डोंट टेक अदर वे, कि लॉसेस इतने भी ना हो जाए कि आपकी रोटी के लाले पड़ जाए, यार रोटी के लिए भी पैसे नहीं बच रहे, कपड़े के लिए नहीं बच रहे। सो आप वो भी फाइनेंशियल वायबिलिटी पे आता हूँ, लेकिन यू हैव टू सी के वायबिलिटी में आपने ये देखना है कि कुछ लॉसेस होंगे, बिकॉज यू आर ए न्यू, आप नए हो, आपको नहीं पता लग रहा। सो यू हैव टू फेस सम लॉसेस। मीन्स साइकिल से एक बार गिरे
चोट लगी, फिर उठे, फिर ये देखा कि मैंने किया क्या, शायद हैंड ब्रेक लगा दी, अगली ब्रेक लगा दी, या मैंने कुछ ऐसा किया कि साइकिल उठ गई। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने फॉल से फीडबैक जरूर लेते हैं, या कहाँ गड़बड़ हुई ताकि वो रिपीट ना हो। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर negative feedback, you have to learn from your positive feedback in entrepreneurship also. So information inputs very important. You have to take a lot of informations. मतलब आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आपको क्या फायदा देगा, पोल्यूशन कंट्रोल से आपको क्या फायदा है, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोक्रेट्स के लिए स्कीम्स हैं, देयर आर 100 थिंग्स। मैं आपको बताऊं कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसके टारगेट भी पूरे नहीं होते मार्च में, फिर वो पकड़ के बंदों को लाते हैं, बिकॉज हम ऑफिस से भी काफी इन टच रहे हैं कि जी टारगेट पूरा हो नहीं रहा, और अगर पैसा सरेंडर किया तो हमारी नौकरी गई, बंदे पकड़ के उनको पैसे पकड़ाते हैं कि तुम शुरू करो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है, इंफॉर्मेशन इनपुट्स बड़ी काम है, और हजारों लोग अपने बिजनेस में फेल होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। दे डोंट नो, पता करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो उनको एक आदत पड़ी होती है कि कोई बता देगा आके और कोई मुझे गाइड करेगा। नो, एंटरप्रेन्योरशिप में एवरीवन इज टोटली सेल्फिश, डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस सेल्फिश, बट दे आर सेल्फ। वो अपने में मस्त रहता है हर बिजनेसमैन। कोई बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मैं तो लाखों में कमा रहा हूँ यार, बड़े मजे आ रहे हैं, तू भी ऐसे शुरू कर ले। आप दुनिया का कोई बिजनेसमैन पकड़ लो, उससे बात करो कि बिजनेस की क्या हालत है, वो कहेगा मर गए, डूब गए, बस खत्म होने वाले हैं। और अब ये कोरोना इरा में तो लोगों ने एक रट्टी लगा ली, जिससे मर्जी पूछ लो वो कोरोना को बीच में बसाएगा कि यार कोरोना की वजह से तो मैं मर गया। कोरोना के बाद जो भी बोलेगा, हार्डवेयर का 35% सेल इंक्रीज हुआ है चंडीगढ़ में, 35% सेल इंक्रीज हुआ हार्डवेयर में, सैनिटरी में, सीमेंट रेते में, क्योंकि लोग बिले थे लॉकडाउन में। किसी ने पीछे किचन बना दिया, किसने पीछे कमरा बना लिया, किसने। यू टॉक टू एनी हार्डवेयर शॉप, वो कहेंगे मर गए, लूट गई। कोरोना में तो दुकानें नहीं खुली, लोगों ने आधे शटर उठा के नीचे से सामान लिया कि मिस्त्री आए हैं, सामान है नहीं। What I want to say is make yourself very clear that people will not tell you that this is very good venture, it's profitable, इसमें बहुत अच्छा है, ये आपको खुद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। कोई किसी को नहीं बताएगा, बिकॉज कोई बिजनेस में अपना कंपटीटर नहीं पैदा करता। अगर 10 आदमी गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, आप 11वें हो, आप गारमेंट्स का काम कर लो, आप 10 से जाके पूछ लो, वो इतना आपको डिमोरलाइज कर देंगे, कभी हाथ ना डलियो, मर जाएगा, गिर जाएगा, हम तो लुट गए, मर गए, सब कुछ बिक गया हमारा, और वो बेशक 20,000 रोज का कमा रहा है नेट प्रॉफिट। सो इंफॉर्मेशन इनपुट्स आर very important to make your business more viable, because unless you don't know, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो तुम्हें वायबिलिटी क्लियर नहीं होगी। सो यू हैव टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। वो खुद जाके पता करेंगे, एक जगह से नहीं पता लगेगी, 2, 3 से 4 से 5 से। तो यू हैव टू वर्क फॉर 10 hours a day बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इसको आप इतना इजी भी ना ले कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता। Then you have to see the legal viability बहुत जरूरी होती है कि इसमें लीगल हिंड्रेंसेस तो नहीं है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज कुछ में लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ में सीक्रेसी मेंटेन करती है, कुछ में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि नो ये चीज हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे। हम आई नो वन पर्सन एट मोगा, आज से 10-12 साल पहले, वो बड़ा इनोवेटिव था। उसने एक छोटी सी रडार बनाई, घर में ही बनाई रडार, और उसमें स्काई में 20 to 25,000 फीट पे जो चीजें थी वो छोटी उसकी रडार में आती थी। तो ही वेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही मेट एडवाइजर एंड एनीथिंग कि अब मैं इसको कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहता हूँ। नोबडी अलाउड हिम बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द डिफेंस कि यार ये अगर प्राइवेट में बनने लग गए तो हर बंदा अपने घर में रडार लगा के देखेगा कौन सा जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। बड़ा इनोवेटिव लड़का था मोगा में। आई मेट पर्सनली बिकॉज मैंने उसकी बड़ी कोशिश की कि उसको किसी तरह कमर्शियल परमिशन मिल जाए। सो लीगल वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी में गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, किसी में आज से 10 साल के बाद पोल्यूशन वाले अलाउड नहीं करेंगे, किसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्शन कर देगी कि नहीं जी आपने ये जो मशीन लगाई है इसका तो वेस्ट
बड़ा निकल रहा है, उसमें से स्मेल बड़ी आ रही है और ये तो सारी नालियां भरती जा रही हैं। किसी में पोल्यूशन वाले रेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे, ऑरेंज एरिया डिक्लेयर करेंगे, किसी में there are n number of departments. So what I want to say is, when you are working on your project and you are on the lane of the business, the very important viability about your business is that you have to see the legal viability, कि आपको 10 साल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 15 साल के बाद कहीं मैं आपका सामान ही वहां से उठा दे कि नहीं जी यहाँ तो आपको लोन नहीं कटेगी, आप अपना यूनिट उठा के दे, आप यहाँ से ये उठाओ। यू बिकॉज गवर्नमेंट के पास मास्टर प्लान होते हैं, वो अगले 10 साल का 20 साल का बता देते हैं, मे बी लोकेशन वाइज, इट मे बी मशीनरी वाइज। कोई ऐसी मशीन ले ली जो 5 साल के बाद बननी बंद होगी, उसका मेंटेनेंस का कोई बंदा नहीं मिल रहा, उसकी रिपेयर का कोई बंदा नहीं मिल रहा। सो legal point of view, government permissions, and availability of all those things which are small or big involved in your business, then you have to see the operational viability. अब इसको चलाना है तो ऑपरेशंस में कौन कौन होगा? एक टेक्निकल आदमी चाहिए, कोई मैकेनिक चाहिए, कोई टेक्नीशियन चाहिए, या मैं खुद करूंगा? मैं खुद कब तक करूंगा? मुझे कोई ऐसा फोरमैन चाहिए। इवन इफ यू स्टार्ट विद ए वेरी स्मॉल, 2 लाख का भी लगाएंगे, एक आदमी चाहिए होगा जो उसको सारे को देखे। Because you have to go to bank, you have to go to printing, you have to go to the marketing, you have to go to the wholesaler, you have to go to the packing person. So you have to have one person जिसको delegate कर पाए कि यार ठीक है चला 5% और प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन 80% ये संभाल लेगा, मैं थोड़ा सा इधर उधर भी घूम सकूंगा। बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग विद योर ओन हैंड्स। सो ऑपरेशन वायबिलिटी में क्या आएगा कि यू हैव टू सी के ऑपरेशनल लेवल पे कौन कौन सी चीजें जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, वहां पे मुझे बंदा चाहिए ही चाहिएगा। वो बंदा अवेलेबल है, वो किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, उतनी कॉस्ट में अफोर्ड कर पाऊंगा। सरसरा मतलब एस्टिमेट आपको इन चीजों के लगाने हैं, लेकिन लगाने कॉपी पेन पे हैं, जबानी नहीं, आइडिया दिमाग से निकलते जाते हैं। देन यू हैव टू हैव द टाइम वायबिलिटी, because in setting up a business or innovative business, so whatever you say, that's your vocabulary, but you have to have the time viability कि यार ये कितने टाइम में लगेगा, ये किस तारीख तक क्या हो जाएगा, किस तारीख तक क्या करना है, किस तारीख तक क्या करना है, और अल्टीमेटली कब तक शुरू हो जाएगा। थिंग्स कैन नॉट बी ओपन। अपनी लाइफ में अगर आप देखेंगे कि थिंग्स आर ओपन, then you are a 50% you are a gone case, and you have to made on trial basis also। एक बारी आपको ट्राई करनी पड़ेगी, because all of a sudden there is a some problem, all of a sudden there is some problem। yesterday I was thinking on these lines, and I messaged Dr. Rao that we must come at 10:45 for a trial, because connectivity में कभी भी प्रॉब्लम आ गई तो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे को एकदम दिमाग में ये चीज आ गई, क्योंकि एक दो केस में मेरा सेशन चल रहा था, कनेक्टिविटी उनकी टूट गई कि मेरी टूट गई, कुछ ना सुने ना दिखे। मैं भी फिर पूरी जिद में था, मैं बोल के हटा सारा। मैंने कहा मैं तो घंटा बोलूंगा, सुन रहा है नहीं सुन रहा, मैं तो आ गया मोशन। सो ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मॉल बिजनेस आल्सो, इन द बिग बिजनेस आल्सो। You have to have that trial. So operational viability business में बड़ी जरूरी है कि आपको प्रोडिक्ट करना माइंड में कि यार इस चीज के लिए ये बंदा चाहिए होगा, या ये बंदे की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद कर लूंगा। इस लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे मुझे शायद इस बंदे की जरूरत होगी, इस बंदे की कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशनल लेवल पे। तो वो बंदा किस क्वालिफिकेशन का होगा, वो उसकी मार्केट में क्या कॉस्ट है, वो मैं कॉस्ट अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर वो एकदम भाग गया, किसी ने फिसला लिया कि तू उसको वहां तेरे को 20 मिल रहा है, मैं तेरे को 25 दे देता हूँ। इंडस्ट्री में ये बहुत चलता है, बिजनेस में बहुत चलता है। रेस्टोरेंटों में ये आम कॉमन है। को पूछते हैं कितना मिलता है, 20,000 रुपये, हम तेरे को 25 देंगे, कल से हमारे पास आ जाए, और 6 महीने का एडवांस देंगे। तो मेरे पास कंटीजेंसी प्लानिंग क्या है। अगर बंदा भाग गया तो यूनिट बंद हो गया तो फिर मेरा कैसे साइकिल चलेगा। बिकॉज इन ऑल केसेस आई हैव टू स्टॉप माय एक्टिविटी फॉर नॉट इवन ए सिंगल आवर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ए डे, नॉट सिंगल आवर। इतना काम करने के बाद कहीं प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा दूसरे साल में शुरू होगा, ये एक हकीकत है बिजनेस की। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू हैव ए शेड्यूल कि एक साल में मैंने शुरू करना ही करना है। सो सितंबर 2021 सितंबर 2022 तक आई मस्ट स्टार्ट। अब मेरे पास 12 महीने हैं,
पहले 1 महीने में मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है, दूसरे महीने में मैं प्रोजेक्ट फाइनल करूंगा, तीसरे में मैं इसकी प्रोफाइल बनाऊंगा, चौथे में मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा, 5वें महीने में मैं लोन के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा, 2-3 महीने वो लगाएंगे, 8वें 9वें महीने में मुझे पैसा मिलेगा, 10वें 11वें महीने में मैं ऑर्डर दूंगा। मतलब टाइम को मद्देनजर रखते हुए बेटा आप लोगों ने एक टाइम वायबिलिटी निकालनी है। ये ना हो 2 साल आप लगे रहें, 3 साल आप लगे रहें, 3 साल कोई वेट नहीं आपकी करेगा, काम भी नहीं चलेगा, कंपटीशन डबल हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट आपने दिसंबर 2022 में लगाना था वो आपका लगा दिसंबर 2023 में। तो जब वो दिसंबर 2023 में लगेगा तो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक वहां उसी टाइप के 3 यूनिट और आ जाएंगे। तो पहले आपका कंपटीशन 10 यूनिट से था, फिर आपका 13 से हो जाएगा। Try to understand the moment your time is slipping from your hands, you are increasing competition, especially in entrepreneurship and business, क्योंकि बिजनेस में कोई किसी की वेट नहीं ना करेगा कि जी तू जब लगाएगा तो तेरे बाद ही यार मैं लगाऊंगा, कोई नहीं तू आराम से लगा ले। ऐसा तो प्यार मोहब्बत में कॉलेजों में चलता है कि चल यार मैं तेरा कर देता हूँ, मैं तेरा वो करता हूँ। बिजनेस में तो नेक टू नेक कटिंग चलती है, और अगर आपने 3 महीने लेट कर दिया, 4 महीने लेट कर दिया अपनी डेडलाइन से, तो 4 महीने में 1 यूनिट भी और आ गया तो आपका कंपटीशन 10 की जगह 11 से हो गया, तो आप और फंसे। Try to understand the facts in business. Don't take other way. मैं कुछ डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको डरा नहीं रहा हूँ, उस सेंस में ना ले जाना। मेरी आवाज में कई बार ऐसा टोन आ जाती है, ऐसे लग रहा डरा रहा है, लेकिन यू हैव टू सी द मिरर। देखो हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी होता है, उसको डराना या उसको डिस्करेजमेंट नहीं समझेंगे। सो टाइम वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक ए शेड्यूल ऑन पेपर। इफ यू हैव टू डू you have to do, if you have to do then you have to make a schedule कि इस तारीख तक ये, इस तारीख तक ये, इस तारीख तक ये, और जिसमें 10-20% आप टाइम एक्स्ट्रा डालेंगे, बिकॉज यू आर ए सोशल पर्सन। कभी कोई शादी पे जाओगे, कभी किसी की डेथ पे जाओगे, कभी बुखार हो जाएगा, कभी बीमार हो गए, तो वो टाइम भी आपका उसमें लग जाएगा। सो टाइम वेबिलिटी यूनिट्स में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, वो लटकता ऐसा लटकता है कि फिर वो लगता ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से बता रहा हूँ। Then you have to see the market viability. Market viability बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप एक चीज दिमाग में रख लेना कि हमने बना के ढेर नहीं लगाना। कुछ भी बनाओगे आप, छोटे से छोटा बनाओगे, अपने बेडरूम में बनाओगे, अपने घर के पिछले बैकयार्ड में बनाओगे, बरामदे में बनाओगे, लेकिन वो बना के ढेर नहीं लगेंगे कि आप ढेर लगाई जा रहे हैं और बड़े खुश हैं जी मैंने तो आज 50 पीस बना दिए, मैंने तो आज 100 पीस बना दिए। नॉट एट ऑल। मार्केटिंग वायबिलिटी मस्ट, कि जो आप बना रहे हो वो बिकेगा, और अगर बिकेगा तो कितने का बिकेगा। जितने का बिकेगा उसमें आपकी कमर्शियल और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकलते हैं, कि ये ना हो कि आपको कॉस्ट तो पड़ रही है एक पीस की 2000 की और उसको कोई 1500 में नहीं उठा रहा, तो आप तो 500 लॉस में आ गए। Are you able to understand what I am saying? Because you have not to store the things, and don't be happy by only manufacturing or only producing कि आपने बना लिया। Market viability is must। आपको बेचना है, क्योंकि बिकेगा पैसा वापस आएगा, पैसा वापस आएगा, जो पैसा लगा हुआ है उसमें से पैसा वापस आया माइनस होगा, that is your profit, and for profit you are working, and for profit you have to work, and for profit the only aim in business is to make the profits, so you should be proud of making the profits and making the money। हमें कई बार शर्म आती है ये बोलते हुए कि पैसा, मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं अपना कमाने की बात कर रहा हूँ। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये मिथ से आपको बाहर आना पड़ेगा। जर्मनी में 18 साल से ऊपर लड़की, 18 साल से ऊपर लड़की जर्मनी में अगर अपने घर से पैसा मंगाए तो उसको सोशली बाइकआउट कर देते हैं, अगर पता लग जाए, ग्रुप से निकाल देते हैं, यार ये तो अपने घर से मंगाती है, 18 साल की हो गई। तो मैं व्हेन आई वाज इन जर्मनी, तो मुझे जब उस बंदे ने ये बात बताई तो मुझे मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। मैंने कहा अगर ये इंडिया में अप्लाई हो गया तो हमारी तो सारी लड़कियां ग्रुप से बाहर निकल जाएंगी, बिकॉज वो तो अभी 25 क्या 30 क्या 40 क्या 50 साल तक भी कह देती हैं पापा दे दो, पहली दिवाली है, पहली रखड़ी है, अब तो मैं 2 महीने के बाद आई हूँ, कुछ तो दे दो। So I have to be very clear about that I have to earn the money, and money earn तब होएगी जब बिकेगा, जब तक बिकेगा नहीं पैसा वापस नहीं आएगा। So market viability ये पहले से देखनी है कि जो मैं फाइनल कर रहा हूँ ये कौन कौन बेच रहा है, कौन इसके खरीदार है, और
किस लेवल का बिक रहा है, किस कॉस्ट का बिक रहा है। फिर अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ मेकिंग देखेंगे कि मेरे को बनाने में कितने पैसे लगेंगे। फिर हम गैप देखेंगे, फिर उसको हाथ डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ के आसपास कम से कम 10 पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूसिंग एग्स एंड चिकन। कारण कि जो चंडीगढ़ में सारी कॉस्ट के बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ 1.5 रुपए का एक अंडा पड़ता है। सारा कुछ करने के बाद उसका फीड हो गया, क्लीनिंग हो गई, सारा कुछ हो, वर्कर का खर्चा, ये वो सारा। अंबानी की पार्टियां एट डोर स्टेप्स 1 रुपए पे देने को तैयार है विद ब्रेकेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट वायबिलिटी? कि चंडीगढ़ में कम से कम 15 यूनिट। द ओनली रीजन वाज कॉस्ट वाज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी हाई। जो इतना कुछ करने के बाद उनको 1.5 रुपए का अंडा पड़ रहा था, तो कम से कम 2 या 2.5 रुपए का बेचेंगे। 1 रुपए का अंडा बचेगा तभी सारे खर्चे निकलेंगे, बिजली है, पानी है, सफाई है, वर्कर की तनख्वाह है, पैकिंग है। लेकिन अंबानी की पार्टीज क्या कर रही है, वो चंडीगढ़ में 1 का अंडा देने को क्या अपनी गाड़ी पे, और ब्रेकेज उनकी जितने टूटे होंगे वो वापस ले जाएंगे कर रही है। So now you see, do you feel that setting up a poultry farm in and around Chandigarh will be viable? Not at all. Maybe any reason. Other reasons है, लेकिन ये मेरा अपने प्रोसेस से निकला हुआ एक एग्जांपल था, तो मैंने दिया। सो मार्केट वायबिलिटी देखनी बहुत जरूरी है कि जो मर्जी करो, जो भी आपके माइंड में आता है वो बिकना चाहिए। और बिकते वक्त ये देखना है कि हुआ था परचेजर्स, इसको खरीदने वाले बायर्स कौन है, और फिर ये किस कॉस्ट पे खरीदेंगे, मार्केट में किस कॉस्ट में बिक रहा है। अगर कोई चीज 2 रुपए की बिक रही है या 200 की बिक रही है, आप उसको 300 की नहीं बेच सकते, जितना मर्जी शोरूम चाहो, ओके नहीं 200 की ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट आल्सो इन व्हिच यू हैव टू सेल, बिकॉज मार्केटिंग में आपको एनवायरनमेंट स्टडी करनी बहुत जरूरी है। सो मार्केट वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू कम कि आपकी रिसोर्सेज वायबिलिटी क्या है। मेरे फादर मुझे कितना पैसा देंगे, मेरे पास कितना पैसा है, मैं लोन कितना लूंगा, सब्सिडी कितनी है रिक्वायर्ड, व्हाट आर द रिसोर्सेज। बिकॉज अगर आप कहते हो कि मेरे पास मैक्सिमम 2 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख है जी, सारी तरफ से मैंने ले लिया, 2 में लगा सकता हूँ। तो अगर बैंक का एक नॉर्म है कि बैंक 25% लगवाता है और 75 देता है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, दैट मीन्स 4 दूनी 8 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास 25% 2 लाख। लेकिन 25 का भी वो लगाते बैंक आपसे 30% लगवा देगा, 35% लगवा देगा। यू कैन नॉट प्रेशराइज द बैंक, बिकॉज बॉल इज इन द बैंक्स कोर्ट। वो अपनी मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी से किया। सो आपको रिसोर्सेज बिजनेस में देखनी बहुत जरूरी है। Your father is your resource, your money is your resource, technical knowledge is your resource, your education is your resource. Everything this is related to your बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज जो भी आप बनाएंगे वो पहले से बन रहा है और लोग खरीद रहे हैं। So you have to have the competitive comparison with positive, very positive approach. डर से नहीं, 10 बंदे बना रहे हैं जी, मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से बन नहीं रही, पहले बन रही है, लोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एंटर कर रहे हैं। हॉस्पिटल के आसपास चक्कर लगाना, सबसे पहले 1 केमिस्ट आया था, फिर 2 आया था, अब 16 सेक्टर के पिछली मार्केट में कम से कम 10 केमिस्ट हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि 9 भूखे मर गए, और 9 अगर ये सोच लेते कि यहाँ तो ऑलरेडी केमिस्ट है यार, मेरा तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, सारे तो इसी पास जाएंगे। नो, there are many other things which attracts the customer. So you have to study the competitive comparison viability, कि इसमें मुझे कंपटीशन में एंटर करना है, ये मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि आप जो भी करना चाह रहे हो, जैसा भी बिजनेस करोगे, यू हैव टू हैव ए कंपटीशन इन द मार्केट। कोई ऐसी आइटम आप नहीं उठा सकते कि यू विल बी द फर्स्ट टू डू दैट, कि जी आप पहले हो, सो आपकी तो मोनोपोली है, कि आपसे पहले कोई बनाता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। सो एनी आइटम स्मॉल और बिग, देयर विल बी कंपटीशन,
So you have to have the knowledge how to enter competition with better quality, with less rate. थोड़ा सस्ता करके बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे, होम डिलीवरी देंगे. There are many things जो कस्टमर को कंपेयर करेंगी. सो कंपटीशन, कम्पिटिटिव कंपैरिजन, वायबिलिटी पहले से स्टडी करनी है. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने सारा काम कर लिया, तैयार कर लिया और आपको यही नहीं पता कि इसका मार्केट में कंपटीशन कितना है, यही नहीं पता इसकी मार्केट है कहाँ पे. क्योंकि लोकेशनल मार्केट भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि आपने जो कुछ बनाना है वो चंडीगढ़ में बेचना है, पंजाब में बेचना है, हरियाणा में बेचना है, इंडिया लेवल पे बेचना है, कनाडा बेचना है, यूएस बेचना है, जापान बेचना है. यू हैव टू डिसाइड because there is nothing hitch. सरकार और लोग आपको रोक नहीं रहे, आप जहाँ मर्जी बेचो. You have to see resources and you have to decide कि मैं इसको चंडीगढ़ में ही बेचूंगा, मैं इसको चंडीगढ़ के आसपास के विलेजेस में बेचूंगा. Your item is related to rural area or urban area. Rural area है तो मैं चंडीगढ़ के आसपास बेचूंगा. Urban area है तो urban city. So you have to have the competitive comparison marketing study about the product before starting it. So these are various types of viabilities which we have to study. Feasibility and viability about the business जो एक बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है जिसने, बिकॉज आम लोग इन चीजों को बड़ा सीरियसली नहीं लेते. दे फील के यार बस पैसा इकट्ठा करो, चलो यार शुरू करते हैं, हो जाएगा, अपने आप बिकेगा, अपने आप बन जाएगा, अपने आप आ जाएगा. अब कुछ नहीं होता है. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन चांसेस, इट इज नॉट गैम्बलिंग. ये दिमाग में नहीं डालना कि ये जुआ या चांसिंग. एंटरप्रेन्योरशिप इज वेल प्लान्ड थिंग. यू हैव टू हैव द प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग, प्लानिंग ऑफ प्लेस, प्लान ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ मैन पावर, ऑफ marketing, planning of advertisement. You have to plan, even if it's a 2 lakhs or 5 lakh project, even it's a small. And my request to all of you is you have to start with a small. थोड़े से बड़े में शुरू में फिर वो संभलता नहीं है और it starts becoming sick. वो sick हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है. तो start with a small. Try to understand the in and outs of the business. Then after 2-3 years, you can expand this. One, start from a very small place. Even you can start from your home. 3, you have to see every project from commercial point of view. कि इसकी cost कितनी होगी और इसके benefit और इसके profits कितने होंगे. So thank you so much. It is 12 past 1 minute. So I was told by Dr. Rao that we have to close by 12, but I will love to have some questions. If the audience have some questions or doubts, we can have another 5-7 minutes for your question answer platform. Students, if you have any questions, please you can ask your questions. You can turn on your mics and you can ask your question directly from sir. Any doubt? कोई मैंने ऐसी टर्म बोली वो नहीं क्लियर हुई क्योंकि वायबिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. हाँ जी sir. Like sir, very big educational corporation like Biju is acquiring companies on daily basis. So sir, is it viable to open Oh, any yes. educational institution or? Yes, why not? Because आज की डेट में I will always say to discourage and avoid the manufacturing things. You should go for service units. So educational institutions, coaching centers are providing service to the students, so they are considered as service unit. And service unit are being given every benefit by the government of India in the title of industry. They are as good as manufacturing. So service unit restaurant हो गया, hotel हो गया, coaching center हो गया, dry cleaning हो गई, जो आदमी को सर्विस दे रहे हैं, आप वहां से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे. अभी आप स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहला आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको इन्स एंड आउट्स पता लगे बिजनेस के, स्पेशली वो लोग जो बिजनेस फैमिली से नहीं है और जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुए. कईयों के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए. वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और सेक्टर 26 पहुंच जाते हैं, वहाँ हल्ला गुल्ला करते हैं तो शाम को पहुंच जाते हैं वापस. तो उनको इतना पता होता है कि हमारे पास पिताजी का ये बिजनेस है, आगे कुछ नहीं पता होता. सो आई कंसिडर ऑल ऑफ यू एज ए न्यू स्टार्टअप्स, जो इन्होंने स्टार्टअप वर्ड दिया. तो yes, I agree to your query and say very heavy yes to this, that you should start with a service unit.
Sir, there's another question from Lakshak Sharma. He wants to know what is the perspective of investors towards entrepreneurs or startups. I will say in a very small unit, if you slightly discourage the investors, because investors terms conditions you may not be able to run with that, वो आपकी viability को खत्म कर देगी. इन्वेस्टर थोड़ा सा मतलब क्या वर्ड यूज करूं, बड़े तेज ग्रुप है इंडियन सोसाइटी में. वो रेशो दे देगा 70-30 की या 75-25 की. वो बोलेगा 75% मेरा होगा, नेट प्रॉफिट का 25% आपको होगा, और दिन रात आप काम करेंगे, वो कभी आएगा भी नहीं. तो आई विल प्रेफर कि यू स्टार्ट विद ए स्मॉल, बट स्टार्ट विद योर ओन रिसोर्सेज. Doesn't matter if you start with a small. I can show you and give you names. You go and visit them who started with 20,000, 50,000. They could have taken the investors कि यार बहुत बड़ा यूनिट लगाएंगे. बड़ा यूनिट का अभी सोचना ही नहीं है पहले 3-4 साल. छोटा, और जितना वो इंडिपेंडेंट हो उतना ज्यादा अच्छा होगा. थिंग्स विल बी इन योर हैंड्स. अदरवाइज आप करना कुछ चाहते हैं, इन्वेस्टर कहेगा नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर. जब बड़ी बहस बसाई होगी तो वो अपने पैसे विड्रॉ कर लेगा. फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि अब इसका क्या करना. फिर वो आपकी मशीनें भी उठवा देगा. Are you able to understand me? Okay, my preference will be that you should be totally independent, even if you have to reduce your investments. छोटे से शुरू करने. पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बड़े से ही करना है, इन्वेस्टर को ही इन्वॉल्व करना, तो आई एम नॉट जनरलाइजिंग द थिंग्स. एवरी इन्वेस्टर इज नॉट ए गड़बड़ मैन. अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की बात की है कि उनका मोटिव कुछ और होता है. आप नया स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर उसको सहन नहीं कर पाएंगे, आप उसको सह नहीं पाएंगे, वो कुछ और सिस्टम से चलेगा. There's another student, although like the topic is different, he wants to know about Share Bazaar, but I only wants to tell you we can have a separate talk on Share Bazaar because it's totally a different topic. Okay, you can ask questions from the topic which has been delivered by sir. So Share Bazaar is a different thing. We can have another session on this topic, Share Bazaar. So right now, whatever sir has, and you can raise questions from that. रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप सवाल पूछेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. लेकिन अब ये सवाल ना पूछना कि पिक्चर हॉल कब खोलेंगे, वो मुझे मालूम नहीं है. वायबिलिटी को समझने की कोशिश करो. मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक लगा. शुरू में मुझे कुछ टफ लगा. आई शेयर्ड माय व्यू विद डॉक्टर राव आल्सो, यार ये बड़ा टफ है नए बच्चों के लिए. लेकिन जब मैंने बाद में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो मैंने ये देखा कि 40 to 50% पीपल आर unaware and unable to understand the viability of various steps in business. So those were the one of the reasons for their sickness. So मार्केटिंग वायबिलिटी है, रिसोर्सेज की वायबिलिटी है, लीगल वायबिलिटी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. ये इस पे होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है कुछ भी शुरू करने से पहले, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न्ड मनी. And if you even take a financial assistance from bank, your first impression will be the last impression. If for a 1 year you are able to deposit your installments well in time or before the time, bank will love to finance the double amount. And once you are able to slip the installments के 6 महीने से installment ही नहीं दी, तो वो आगे से कभी पैसा देने का सोचेगा भी नहीं. So it's a sensitive issue that you have to do homework on all various steps in business, then start it. स्टार्ट की जल्दी मत करो. 6-8 महीने जब तक कॉलेज में पढ़ रहे हो साथ साथ ये वाला काम करो. जब भी कॉलेज से निकलोगे तो आपका सारा प्रिलिमिनरी काम हो चुका होना चाहिए. आई एम ऑफ दिस व्यू. आई मे बी रॉन्ग. Sir, may I ask a question, sir? Oh yes, why not? You are Sir, Ankit Chauhan. Yes, sir. You are from Himachal. No, sir, Chandigarh only. ओके चौहान तो मुझे हिमाचल में बड़े मिले यार. सॉरी, अब तू चंडीगढ़ हो गया तो कोई बात नहीं. Sir, like
like 4 or 5 years back, sir, Amul came Amul came to Chandigarh, sir, to launch their products, but they Okay, faced a very stiff competition from Verka Corporation and were driven out of business. okay, Even though they had all the resources and all the government and legal requirements in order to okay. start the business, sir. Can you please reflect your view on that? That मेरे how से could क्या पूछना such चाहते a हो? big corporation fail The in reason spite of is having? the comparison competition was very high, very high, because I don't know how Amul entered, लेकिन अमूल कम से कम 70 साल पुराना है, तो वो जैसे तैसे लॉसेस में घुस गया। वो अगले 5 साल भी उसको, अगर पहले 5 साल भी उसको लॉसेस हुए तो वो घुस गया। तो अब अमूल आ गया, वेरका आ गया, मदर डेयरी आ गया, तो एक छोटा प्रोजेक्ट या कोई भी किसी टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो मतलब उसके ब्रांड में एंटर करना इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज ब्रांड नेम इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। द साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि मैंने तो वेरका का ही दूध पीना है, वो क्या उसमें पॉइंट देते हैं, वो वेरका में मलाई ज्यादा होती है, उससे फिर मक्खन ज्यादा निकल आता है, वो तो हमें सस्ता ही बड़ा पड़ता है, वो सब में निकलती है, सब में आती है, लेकिन वो लड़ रहे होते हैं रेडी वाले से कि मैंने तो और कोई लेना नहीं, वेरका ही दो, हम तो वेरका ही लेते हैं, अमूल वाले अमूल ही लेते हैं। तो ये बेटा नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, और इन में एंट्री थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है कि इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कस्टमर पे इतना हाई होता है कि कस्टमर इज नॉट वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू शिफ्टिंग टू द अदर्स। अगर मैं किसी दर्जी से शर्ट सिला रहा हूँ 10 साल से, तो मुझे कोई मिन्नतें भी करेगा ना कि तू यार इससे सिला ले, ये बहुत बढ़िया है, तो मैं कहूँगा यार मैं उससे सिला रहा हूँ तो मैं उसी से सिलाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अनलेस वो कोई गड़बड़ करे। जहाँ से मैं शर्ट खरीदता हूँ मैं वहीं से खरीदूंगा, तो मैं किसी और से क्यों खरीदूंगा। तो ये छोटे वाले में जैसे आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे तो छोटे में एंट्री हो जाती है, क्योंकि छोटे में इतना ब्रांड अफेक्टेड नहीं होता, इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट ब्रांड का नहीं होता, और इतना ब्रांड ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं होते। सो आई एम आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज के साइकोलॉजिकल ब्रांड इफेक्ट ऑन द थिंकिंग ऑफ द पीपल समटाइम्स इज ए बिग ऑब्स्टेकल टू एंटर दैट मार्केट। नहीं एंट्री होती है, ऐसा एक केस नहीं, ऐसे बहुत केस हैं, और जिनकी एंट्री हो रही है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, और वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस और एंट्री इंडिया में चाहती है। आपको पता है कोका कोला 5 रुपए का है, आई थिंक यू आर अवेयर, इट्स 5 रुपीज, और उसकी बोतल की कॉस्ट इज मोर देन 7 रुपीज। सिर्फ खाली कांच की बोतल वो 7 रुपए में पड़ती है उनको, फिर उसमें वो डला सारा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रक से, फिर ड्राइवर, फिर ये खर्चे। तो कोका कोला पिछले कहीं 10 साल से, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इज इन हैवी लॉसेस इन इंडिया, बट व्हाई दे आर डूइंग इट? पागल है। मैंने तो अभी आपको बताया कि यू हैव टू वर्क फॉर द प्रॉफिट। वो जो इंडिया में लॉस हो रहा है वो यूएस में कवर कर रहे हैं, वो किसी और कंट्री में कवर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस चाहते हैं, वो इंडिया में अपना नाम चाहते हैं कि कोका कोला अभी जिंदा है, कोका कोला का नाम है। दे आर नॉट वर्किंग ऑन प्रॉफिट्स ओनली, बिकॉज थ्योरी चेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट ए वेरी स्मॉल यूनिट, थ्योरी चेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट ए मीडियम, थ्योरी चेंजेस व्हेन देयर इज ए लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट को ब्रांड का बहुत होता है, वो 5 साल भी लॉसेस में आएंगे तो वो लॉसेस में को बियर कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी और एरिया में ज्यादा प्रॉफिट लेके उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन छोटे यूनिट में जिससे हमने जहां से शुरू करना है 5 लाख 10 लाख से, उसमें ब्रांड और साइकोलॉजिकल कस्टमर की इतनी साइकोलॉजी ज्यादा मैटर नहीं करती, सो यू विल बी इजी टू एंटर। But in large industries, sometimes they just they work for their existence, not for the profits. So theory change हो जाती है. It doesn't apply to the small, because in the small you have to work for the profits. अगर 3 साल प्रॉफिट ना आया तो आपका सब कुछ बिक जाएगा और माँ बाप भी घर से निकाल देंगे। यार 3 साल से तूने कख नहीं किया, हमारा भी 10 लाख लगवा दिया, अब तू चुपचाप ऐसे कर कहीं लग जा 8,000 पे। ये बड़े केसेस हुए हैं ना, मैं मिलता हूँ लोगों को, तो मैं वो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज थोड़ी रफ हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन द स्मॉल यूनिट दैट यू हैव टू वर्क फॉर द प्रॉफिट, एंड अर्लीस्ट टाइम पे यू हैव टू कम द प्रॉफिट। अर्लीस्ट मींस विद इन 2 years,
मैक्सिमम 3 years। जेस्टेशन पीरियड 3 साल से ऊपर गया तो तुम गए, यू आपका सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो जाए। Any other question? You can turn on your mic and you can ask your question yourself. So basically, Vidit wants to know like why we Indians are attracted to imported products. वो भी एक बड़ी जबरदस्त हाँ, वो भी एक जबरदस्त मैडम मेंटल एप्टीट्यूड है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। ये बाहरों आई है कमीज, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਿਖਾਣ ਚੱਲ ਪੈਨੇ हैं, एक कमीज जी देखो बाहरों आई है। और मेरा ख्याल नहीं चंडीगढ़ में कोई ऐसा सेक्टर है जहां कोई इंटरनेशनल ब्रांड ना हो। मैंने भी एक सवाल अपने रिलेटिव से पूछा था। माय सिस्टर इन लॉ इज इन यूएस फ्रॉम लास्ट 20 years, वो डॉक्टर है वहाँ। तो वो आने के वक्त वो कहती मुझे लिस्ट आ जाती है कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। तो मैंने कहा यार ये इसका कारण क्या है? तो मैं वैसे घुमा के नहीं कह रहा, एक अद्धी चीज तो चल तू अपनी मर्जी से मेरे लिए भी ले आएगी। वो कहती द ओनली थिंग इज के पीपल आर वेरी कंफर्टेबल कि जे सेम ब्रांड इंडिया में खरीदेंगे तो खुद पैसे देने पड़ेंगे, मैं लाऊंगी तो फिर मैं पैसे तो लूंगी, एक तो ये सेफ्टी होगी, एक उनका साइकोलॉजिकल बूस्टअप बड़ा हो जाता है कि ये अमेरिका से आई है, ये यूएसए से आया है। सो इफ यू गो टू द लैपटॉप मार्केट, इस सेक्टर में आप लैपटॉप की मार्केट में एक बार राउंड लगाना तो आपको दुनिया का कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है जो नहीं मिलेगा और कम कॉस्ट पे और उनकी सर्विस सारा कुछ। लेकिन पीपल आर वेरी हैप्पी जी ये सोनी का लैपटॉप जी मैंने अमरीका तो आया, ये तो मेरी मासी ले आई है, मेरी ताई ले आई है। वो ताई बेशक गाली करती लाई होगी कि यार कहाँ फंस गए, $200 और खर्चा हुआ। तो अमेरिकन या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का अब धीरे धीरे वैसे कम भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है यूथ पे और यंग जनरेशन पे, सो दे आर मोर कंफर्टेबल विद द वेस्टर्न सिस्टम्स। हमारे वक्त में थोड़ी सी मोरी होती थी तो मेरी माँ मेरे को जाने नहीं देती थी, सुई धागा लेके उसको सिलती थी कि शर्म नहीं आएगी मोरी वाली पैंट में जा रहा है। अब मैंने सुना लोग मोरियाँ खुद कर लेते हैं पैंट में। मेरे को पता लगा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, इतना गरीब कैसे है ये। तो वेस्टर्न कल्चर तो डोमिनेट कर ही रहा है क्योंकि पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन दैट। सो वेस्टर्न आइटम्स में भी वो ज्यादा खुश हो रहे हैं। अदरवाइज कंट्री लाइक इंडिया एंड सिटी लाइक चंडीगढ़, एवरी ब्रांड इज अवेलेबल एवरीवेयर। ये तो इंडिविजुअल सोच की बात है, हाईली इंडिविजुअल थिंकिंग। Thank you, sir. Thank you so much for such an interesting and informative session. It has always been a delight to listen to you. And very vividly in this session, you have touched upon different aspects of setting up business. You have talked about feasibility, viability, gestation period, and certain things also very frankly you have pointed out, like information, if you want to collect information before setting up the business, you have to collect it on your own. You can't rely on a person who is already in the market. So these are certain things which need to be told to this budding entrepreneurs, because otherwise we usually go to the market, we look for the information from those persons who are already dealing in that type of business. So very rightly you have pointed it out. And thank you so much. So before we end this session, I would request President of Innovation Cell, Dr. Taranjit Rao, to present a formal vote of thanks. Over to you, ma'am. Yes, thank you, Raman. Warm greetings to all of you. Yes, thank you, Raman. Warm greetings to all of you. Today, the focus of disruption, globalization, and regulation are befitting the economies of every country. Established industries are shedding jobs, many of which will never return.
So we all have vested interest in fostering an environment that helps in creation of an innovative economy that's driven by the rapid expansion of startups. So higher educational institutions have an important role to play in this direction. In this context, today's mentoring session on lean startups and minimum viable product was organized to promote out-of-box thinking and create a culture of innovation in our institute. Now, on behalf of my team, I take this proud privilege to extend formal vote of thanks. My profound thanks and gratitude are due to the distinguished speaker of the day, Sardar Balbir Singh, ex-Vice President NITCON and now Advisor to Regional Center for Entrepreneurship Development, Chandigarh. Sir, I truly appreciate your willingness to share your knowledge on today's topic. Sir, I am confident that our faculty and students have gained a lot from your deliberations. Thank you, sir. We look forward to more collaborations with your organization. My sincere thanks are due to our worthy management and Honorable Principal, Dr. Navjot Kaur, encouragement and extensive support provided by them. I am incredibly grateful to my entire team of Innovation Cell for their enthusiastic and unflinching support always. Special thanks are due to student members of Innovation Cell, Mr. Navdeep Vinayak and Ms. Pooja Bind for their full-fledged support. They are always at my beck and call. My heartfelt thanks are due to all my worthy colleagues and dear students for for making this event successful with their gracious. I look forward for your cooperation to create a culture of innovation in our institution so that we are in a position to provide real solutions to the real problems. Someone has remarked, if you act enthusiastically, you will always be full of enthusiasm. So, always be curious and enthusiastic to explore new things or new and better ways of doing old things. Thank you very much. Have a good day. So now I request all of you to please switch on your cameras for a group photograph. Yes, over to you, Raman. So with this we wind up today's session. Thank you so much, sir. It was really a delight to listen to you. Always it has been a delight to listen to you because I have attended some of your sessions earlier also. And thanks a lot, sir. And thank you so much. Just to add one line, if any student has some query later on also, hope to continue they can have my email or mobile from Dr. Thanks to all of you. With this, we wind up with this session. Thank you so much. सर एक क्वेश्चन था. Hello. सर. यस, आपको मेरी बात सुन रही है? यस सर, सुन रही है सर. सर एक क्वेश्चन था. हाँ सर, जैसे सर आइडिया है हमारे पास, लेकिन सर हमारे पास पैसे नहीं है उसको हमारे पास पूरा करने के लिए. तो सर हम क्या कर सकते हैं? पैसे मनी. सर आइडिया है पर लेकिन फंड नहीं है. आप आइडिया को अच्छी तरह से स्टडी करो और उसको कमर्शियली देखो कि वो वाइबल है कि नहीं.
and if you are convinced with your idea, you have to convince the banker कि ये idea है और इससे हमें ये profits होने वाले हैं. And if the banker is convinced, they will always pay you some nominal funds, because there are some schemes जिसमें promoter share बिल्कुल भी नहीं होता. 25% 30% तो मैंने वैसे जनरल एक टर्म दी थी, but now there are good schemes जिसमें 100% फाइनेंसिंग भी है. But the only thing is कि your idea should be commercially viable, because banker को ये फिक्र रहेगा कि अगर मैंने इसको 100 दिया है, 100 रुपया दिया है तो ये 200 कमा ले, जिसमें से 100 मेरा वापस कर दे, विद इंटरेस्ट 110 रुपए दे दे और 90 रुपए खुद रख ले. अगर उसको ये पड़ गया कि ये कमर्शियली वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट, तो उसको लगेगा कि ये अपने 100 भी डुबोएगा तो मेरे 100 भी डुबोएगा. ये एक मैं आपको थंब रूल थ्योरी दे रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की. दे विल लव टू फाइनेंस. बैंक जब तक फाइनेंस नहीं करेंगे उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बैंक के खर्चे निकल ही नहीं सकते. तो ऐसा मत सोचो कि बैंक में कोई नेगेटिविटी या कुछ होती है. बैंक को एक ही डर होता है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है, ये चला पाएगा कि नहीं पाएगा. वो आपकी कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पे है. You have to convince and communicate fully that this is commercially viable and you will generate the funds. The moment banker will able to understand कि he will be able to generate the profits and he will be able to return the money of the bank, वो आपको किसी भी स्कीम में फिट कर देगा. उन्हें खुद पता होता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर यंग एंटरप्रेन्योर है किस स्कीम में फिट होएगा. बिकॉज बैंकर की प्रमोशन, बैंकर की ट्रांसफर, बैंकर के रिकॉर्ड्स सारे डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितनी रिकवरी की. और आज तो ये हालत हो गई है कि अगर 5 में से 3 लोन वापस नहीं हुए रिटायरमेंट तक, तो वो उसकी पेंशन भी रोक रहे हैं कि तूने किस तरीके से इसको फाइनेंसेस दे दिया, तू तो रिटायर हो रहा है और हमारा तो 8 लाख फंस गया, 10 लाख फंस गया. सो बैंकर इज ओनली सेंसिटिव अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के यू मस्ट कम इन प्रॉफिट एंड यू शुड बी एबल टू रिटर्न द मनी ऑफ द बैंक. दैट्स ऑल. बाकी कुछ नहीं बैंक ने लेना देना होता. बैंक ने तो पैसे देने ही देने हैं बेटा. वो बैंक पैसे नहीं देगा तो अपने खर्चे कहां से निकालेगा. Thank you so much, sir. With today's lecture, I think students will be able to come up with the idea which will be really viable, and they will definitely go for the startups. थैंक यू सो मच जी. लेटर ऑन भी अगर कोई स्टूडेंट इन टच रहना चाहे तो मेरा ईमेल मोबाइल मैडम से ले लेना. कभी कोई डाउट, कोई शक है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चन और ईमेल योर क्वेश्चन. आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.